بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں مشہور شیخ الحدیث فقہ العصر، آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب، یہ بتانے کے لیے کہ میرے پوچھے گئے مسائل یا بتائے گئے مسائل آپ کے مسائل کا شرعی حل کیا ہے۔ ناظرین، ہر ہفتے ہم مختلف موضوع پر گفتگو کیا کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کسی ایسے موضوع پر گفتگو کریں جس کے حوالے سے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ ان کا حل جاننا چاہتے ہوں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ دوران نماز بے وضو ہونے کے مسائل کیا ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وضو لازم ہے نماز اور تلاوت قرآن مجید کے لیے، لیکن جہاں آج اس معاشرے میں بے انتہا تفکرات میں مبتلا ہیں آج کل کے لوگ، وہاں وضو کے حوالے سے بھی بہت سارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ذہنی امراض کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شک کی وجہ سے ذہنی مرض مبتلا ہو۔ ہر مسئلے کا حل بیان فرمایا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اٹھا کر دیکھیں تو ہر انسانی مسئلے کا حل موجود ہے۔ آئیے، جیسے میں نے کہا، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب، ان سے بات کریں گے وضو کے حوالے سے، خصوصاً اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر دوران نماز آدمی بے وضو ہو جائے تو اس کا شرعی حل کیا ہے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ان دیگر ٹیلی فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے ٹی وی اسکرینز پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ موضوع کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کے مسائل کا حل، آپ پروگرام میں شامل ہوں، اپنے مسائل بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے مسائل کا شرعی حل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کرتے ہیں مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ماشاءاللہ دین کے لیے خصوصاً اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی اتنی خدمات ہیں کہ میں جب آپ کا تعارف کرا رہا تھا تو میں کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا جو آپ کی شان کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ اچھا، عرض یہ کرنی تھی کہ وضو انتہائی بنیادی، میں تو کہوں گا، عمل ہے جو عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اگر وضو نہ ہو تو کہتے ہیں کہ وضو نماز نہیں ہوتی، اور اگر تلاوت قرآن مجید کرنی ہے تو وہ بھی بغیر وضو کے دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سب سے میں چاہوں گا کہ وضو کے حوالے سے آپ کچھ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وضو کے متعلق آپ نے بات کی، اور فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جنت کی چابی، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو جس کو نہیں آتا تو وہ جنت کی کنجی سے محروم رہے گا، یعنی نماز ہی اس کو حاصل نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اس نے گناہ کیے تھے وہ دھل جاتے ہیں، اور پھر وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کا حل فرما دیتا ہے۔ جو انسان وضو سے ہوتا ہے گویا کہ وہ عبادت میں ہوتا ہے اپنے رب کی۔ اور پھر وضو کا معاملہ اتنا ہے، میں یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان جب بستر پہ سوتا ہے، سونے سے پہلے وضو کر لے تو سونے کے دوران اس کی روح عرش کی سیر کے لیے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بے وضو ہوتا ہے تو اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ تم اوپر نہیں جا سکتے، اس روح کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو حل مشکلات کے لیے بھی وضو بہت اہم ہے، جسے ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں۔ آفتوں سے بچنے کے لیے بھی وضو بہت اہم ہے، کیونکہ انسان ہر وقت وضو میں رہے تو یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ پھر یہ کہ چونکہ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل بھی ہے، تو اللہ کا تقرب خصوصی طور پہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اور بے شمار فضیلت وضو کی بیان کی گئی۔ اچھا، وہ سب وضو ایک انسان نے کر لیا اور اس کے بعد وہ دوران نماز بے وضو ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے گا شریعت مطالعہ کیا کرتی ہے؟ خال کالر شامل ہے، آپ کی اجازت سے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل، میں نے سوال پوچھنا ہے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو بلڈنگ پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے، اور دوسرا میں نے پوچھنا ہے کہ جو عورتوں کے سر کے بال اترتے ہیں نا، وہ کچھ لوگ پھینک دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو بیچتے ہیں، تو کچھ لوگ دفن کرتے ہیں کہ کوئی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، تو بہتر کیا ہے؟
اچھا میری بہن ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیے، اس پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کے مسائل کا حل کیا ہے انشاءاللہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب کو جواب دیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. مصعب سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے ذہن میں یہی آیا تھا کہ اگر نماز کے دوران بندہ بے وضو ہو جائے شریعت مطہرہ کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی تعلیم بہت واضح ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو اس پہ حکم ہے کہ فوری طور پہ اس نکل جائے، دوبارہ جا کے وضو کرے، پھر اپنی نماز شروع کرے. اور اگر وہ جماعت میں ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو طریقہ کار جو سنت میں آیا وہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے ناک پہ رکھ لے اور کمر جھکا لے. اس طرح کے ایکشن کرے گویا کہ اس کو نکسیر چھوٹ گئی ہے، نکسیر پھوٹ پڑی ہے. اور پھر وہ اس طرح کمر جھکا کے اگر صفوں میں آگے کھڑا ہوا تو صفوں کو چیرتا ہوا درمیان سے نکل جائے. اور لوگوں کے لیے بھی حکم یہ کہ اس کو راستہ دے دیں. ہمارے یہاں پر نماز سے اتنی ناواقفیت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قدم ہٹ جائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا تراویح ہوتی ہے تو کوئی شخص دیر سے آتا ہے تو جگہ خالی ہوتی ہے، خالی رہتی ہے، کوئی ہمت نہیں کرتا آگے بڑھ کے اس جگہ کو پر کر لے، یا دائیں بائیں والے پھیل جائیں اور اس جگہ کو پر کر لے. حالانکہ کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جو خالی صف کی جگہ کو، صف میں خالی جگہ کو پر کر دیتا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمارے لوگ کم علمی کی وجہ سے کہ دین کے مسائل سیکھتے ہی نہیں ہیں تو ڈرتے ہیں کہ ایک قدم بھی اٹھایا تو نماز ٹوٹ جائے گی. حالانکہ نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ مغفرت ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو اسی طرح حکم یہی ہے. بعض لوگ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرما حضوری میں لگے رہتے ہیں نماز کے اندر. اتنا سخت حکم اس کا دیا ہے. کوئی اگر خدا نہ خواستہ صرف اس وجہ سے ٹھہرا رہ جاتا ہے کہ جناب کوئی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہی کافی ہے، تو معاذ اللہ یہ نماز کی توہین اس سے کافر ہو جائے گا. وہ اس سے کافر ہو جائے گا. ہاں. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ہاں یار وضو کرنا ضروری ہے لیکن شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا بولیں گے تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. وہ گناہ گار. اچھا. حکم یہی ہے کہ فوری طور پر ناک پہ ہاتھ رکھے اور صفوں کو چیرتا ہوا نکل جائے. یہ حکم ہے اس کے لیے. اچھا. اب میری بہن نے جو مسئلے بیان کیے تھے ٹیلی فون پر، ان کے حل بتائیں گے؟ دیکھیں پہلا مسئلہ تو انہوں نے پوچھا کہ بلی پاک ہے یا ناپاک ہے. دیکھیں شریعت اسلامیہ میں ایک اصطلاح ہے نجس العین، کہ یعنی جو پورے کا پورا ناپاک ہو اس کو نجس العین کہتے ہیں. اور وہ ناپاکی ایسی ہوتی ہے کہ دھونے سے دھلتی نہیں ہے. تو وہ صرف خنزیر ہے ہمارے یہاں پہ شریعت مطالعہ میں. اچھا. کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو جتنا بھی دنیا کے ساتھ سمندروں میں بھی غوطہ دے دیا جائے تو اس کی ناپاکی نہیں دھلے گی، نہ بال کی، نہ کھال کی، نہ گوشت کی. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، چاہے بلی ہو چاہے کتا ہو، یہ نجس العین نہیں ہے. ہاں البتہ جتنے بھی درندے ہیں جن کے کچلی کے دانت ہوتے ہیں، جیسے بلی بھی ہے، کتا بھی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، جو ان کے گوشت کا حکم ہوتا ہے وہی ان کا حکم ہے. تو ان کا گوشت بھی حرام ہے تو ان کا تھوک بھی حرام ہے. باقی اگر کوئی بلی پہ ہاتھ لگا دیتا ہے یا کتے پہ ہاتھ لگا دیتا ہے تو ناپاک نہیں ہوگا. وہ ناپاک نہیں ہوگا ہاتھ لگانے سے. ہاتھ دھونے کی ضرورت بھی نہیں؟ ہاتھ دھونا بہتر ہے لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اچھا. اور دوسرا کوشچن تھا سر کے بالوں کے حوالے سے، بڑا اہم کوشچن ہے. اور آج کل چونکہ لوگ بہت زیادہ دنیا داری میں ملوث ہو گئے ہیں تو رسوم اسلامیہ کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اسلام بھی چھوٹتا جا رہا ہے. اس کے باقاعدہ احکام شریعت نے دیے ہیں. بین نے خود نے کہا بعض لوگ بالوں کو پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ بیچ دیتے ہیں. حالانکہ پھینکنا بھی بری بات اور بیچنا اور بری بات، کیونکہ انسانی جسم کے اعضاء سے منفعت اٹھانا جائز نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے چاہے مرد کے بال ہو خواہ عورت کے بال ہو، کہیں گڑھا کھود کے ان کو دفن کر دیا جائے. ٹھیک. اچھا اب مفتی صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نمازی کا بے وضو ہونے کے حوالے کے ذہن میں عموماً لوگوں کو یہاں پہ دانتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری نا، تو وہ نماز کے دوران دانت میں سے خون آیا تو وہ نماز پوری کرے گا یا وہ اپنا کو بے وضو سمجھ کے اسی طرح نکلے جیسے آپ نے حکم فرمایا، شریعت نے حکم فرمایا؟ دیکھیے اگر خون بہہ گیا اور آ گیا تو ایسی صورت میں اگر منہ سے باہر آ گیا تو کنفرم ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، خون جاری ہو گیا. اور ویسے اگر دانتوں سے خون تھوڑا بہت نکلا حلق میں چلا گیا تو اس سے بہرحال یہ ہے کہ چونکہ منہ جو ہے وضو کے معاملے میں داخل کا حکم ہے،
बल्कि हाँ खारिज के हुक्म में तब भी इसका वजू टूट जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। हाँ चलिए कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाज़िया रशीद बोल रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। भाई मेरा पहला सवाल ये है कि औरत ने अपने शौहर से दौराने झगड़े के दौरान तलाक का मुतालबा किया। शौहर ने कहा ठीक है मैं तलाक दे देता हूँ, फिर ये कहा समझो मैंने दे दी, तलाक का क्या हुक्म होगा? अच्छा उन्होंने कहा ठीक है मैं तलाक दे देता हूँ, फिर क्या कहा? फिर कहा समझो दे दी। अच्छा समझो दे दी। जी ठीक। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि मैंने एक जगह ये पढ़ा है कि सहाबा किराम के इजमा का इनकार करना कुफ्र है, क्या ये बात सही है और इसके बारे में बयान फरमा दें? और दूसरा ये है कि ये मतलब कौन सा कुफ्र है, क्या वो वाला कुफ्र जिसमें मुर्तद हो जाता है इंसान? अच्छा और तीसरा सवाल ये है कि मैंने एक किताब में ये पढ़ा था कि जो 50 बार दुरूद पाक पढ़ता है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क़यामत में मुसाफिर फरमाएंगे, तो औरतों के बारे में इसका क्या हुक्म होगा इस हदीस शरीफ का? अच्छा ठीक है बहन नाज़िया रशीद, आपने बड़े अच्छे सवाल किए हैं और इंशाल्लाह मुसा को बताएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल आपको मिल जाएगा। एक और कॉलर मुंतज़िर है, शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फारूक बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से मोहम्मद फारूक भाई बात कर रहे हैं जी मेरे भैया। भाई मेरे को तो आपको प्रोग्राम रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए आमीन कि आप दिन की खिदमत कर रहे हैं, आमीन। और अल्लाह ताला कामयाबी मुस्लिम दीन के हदायत अता फरमाए। बहुत अल्लाह। कि मेरे सवाल में पहला है कि मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, जी तो गर्मी में जब हवा बाजू शर्ट होती है कहते हैं जी बाजू को पूरा पहनना चाहिए, नहीं तो आपकी नमाज मकरूह है। अच्छा और दूसरी चीज पैंट को फोल्ड करते हैं ऊपर की तरफ, इसको जी अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहिए, घुटने से ऊपर नमाज के लिए करते हैं जो। ठीक ठीक है मेरे भाई। दूसरा जी जी दूसरा सवाल है कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि बावजूद रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब रात को घर जाता हूँ काम से तो वजू करने के वॉशरूम जाता हूँ वजू टूटता है, तो शैतान कहता है कि वजू ना ही करो, रहने दो। वो बड़ी अपनी कोशिश करता है, उसके लिए क्या आदमी का अमल करे कि वजू बात में रहे? अच्छा ठीक है, आपने अपने मसाइल बयान किए, क्या हल है इंशाल्लाह आप मुंतज़िर रहिएगा। हम मिलेंगे एक मुख्तसर से वक्त के बाद। नारिन टेक अ ब्रेक प्लीज। कहीं से दूर है मंजिले ना कोई करीब की बात है जिसे कल ये है खूबसूरत प्रोग्राम जो आपकी खिदमत पेश किया जा रहा है। आपके मसाइल का हल बयान फरमाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेखुल हदीस फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब। हमें बहुत सारे बहन भाइयों ने अपने मसाइल बयान फरमाए हैं बदले टेलीफोन। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ कि आपके मसाइल का हल क्या है। जी मुफ्ती साहब। देखें बहन नाज़िया रशीद ने क्वेश्चन किया और बड़ा ख़ास क्वेश्चन है ये कि औरत ने तलाक का मुतालबा किया, बाद ने कहा दे देता हूँ। हाँ देखिए अब ये जो जुमला है दे देता हूँ और आगे वो समझ लो हो गई, वो उसके बारे में बाद में गुफ्तगू ठीक करूंगा। ठीक। पहले तो ये समझने का जुमला दे देता हूँ, दे देता हूँ ये जुमला असल में हाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इस्तिकबाल के लिए फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो जिस तरह का हम कहते हैं अभी देता हूँ, दे देता हूँ, कोई चीज़ मैंने आपसे मांगी दे देता हूँ, वह ठहरो दे देता हूँ, ठीक है ठीक। उससे क्या मुराद होता है? दे दूंगा। फ्यूचर ठीक। हाँ तो अगर ये फ्यूचर के मानों में है तो फिर तो तलाक नहीं होगी, यानी इरादा तलाक हुआ सही। और अगर ये हाल के मानों में है, प्रेजेंट के मानों में है, अभी दे देता हूँ ये ले, हाथ बढ़ा के दे देते हैं फौरन, तो फिर हो गई तलाक। ठीक। फिर अगला जो जुमला है कि तू अपने आप को तलाक याफ्ता समझो, समझो कि दे दी, तो समझो कि दे दी से ये तलाक का लफ्ज़ नहीं है। जैसे कि फुक़हा फरमाते हैं कि ऐसी भी अन्य की तालिकुन, क्या इससे तलाक नहीं होगी, तू गुमान कर ले, समझ ले कि तेरे को तुझे तलाक है, तो इससे तलाक नहीं होती जब तक कि देगा नहीं। तो पहले वाले जुमले के बारे में मैंने वाज़ेह कर दिया कि ये माना के ऊपर डिपेंड करता है। अब उससे कहने वाले से उसका पूछा जाएगा तुम्हारी क्या नीयत थी, उसके एतबार से हुक्म है। वो सब माशाल्लाह आप अपने फतावा में बड़ा नर्म हवाला रखते हैं और अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए कि आपने टूटने वाले मुमकिन रिश्ते को आपने बचा लिया। सवाल है तो बहरहाल हकीकत क्या है ये हमारे कॉलर जानते हैं। शामिल करते हैं एक और कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद मुनीर दुबई से बात कर रहा हूँ। जी मैंने ये पता करना था सबसे कि
नमाज में वुजू कर हेलो जी जी हम सुन रहे हैं नज़ीर भाई, बोलिए। नमाज के लिए वुजू करता हूँ ना, सही है, तो वुजू बार बार टूट जाता है, सही है, तो उसमें कुछ वसवस का भी होता है कोई चक्कर? ठीक, और उसके बारे में किस हद तक मतलब आदमी शक में नमाज पढ़ सकता है कि वुजू है टूट गया है? शक की हालत में। ठीक ठीक है नज़ीर भाई, आप दुबई से शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मेरा सलाम कबूल हो दोनों मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से मेरे भाई बात कर रहे हैं। थोड़ा अपना टेलीफोन वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अच्छा भाई टेलीफोन ऑफ करो। जी हजरत मेरा एक मुख्तसर सवाल है सोने के ऊपर, और वो ये कि लगते हुए छोटे से दो सवाल। वो ये कि हम बीवी को जो भी सोना जेवरात वगैरह बना के देते हैं, तो वो उससे सुना गया मुझे कि मैंने सुना कि वो उसके ऊपर जो इस्तेमाल में होती चीज उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। तो अब ये जेवर जो बनाया है तो ये तो इस्तेमाल का ही है, तो अब हम क्या इसके ऊपर अब वो इस्तेमाल करें या नहीं करें? कभी बार कभी इसके नंबर आ गया, कभी उसका नंबर आ गया, कभी आया, तो उसका फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब है क्या मुझ पर? अच्छा, क्योंकि वो बीवी तो उसमें वो नहीं है, उसमें जॉब में या इसमें नहीं भी। अच्छा, दूसरे बस इसी से मुतालिक है, क्या बेटियों को मरने से पहले तकसीम कर सकते हैं और तकसीम किया जा सकता है, या फिर बाद में भी उनका क्लेम खड़े रहेंगे? अच्छा ठीक है, आपने अपने मसाइल बयान फरमाए। एक बीवी को सोना दिया, उस वाले से ज़कात इस्तेमाल में है, होगी नहीं होगी। दूसरा अपने इंतकाल से पहले बेटियों को आप तकसीम कर सकते हैं नहीं कर सकते, उससे आपको बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर मुंतज़िर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? असगर अली दुबई से। दुबई से हमारे भाई असगर अली बात कर रहे हैं। जी असगर भाई। जी हाँ सर। असगर भाई जरा वॉल्यूम बंद करिए टेलीफोन का, क्योंकि वो हो या इको आ रहा है, हम आपको सही तरह शामिल नहीं कर पा रहे। जी जी असगर साहब, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई असगर साहब की। जी अच्छा देखें, बहन नाज़िर रशीद का एक क्वेश्चन था और बड़ा अहम सवाल है कि इजमाए सहाबा का इनकार कुफर है, तो उससे कौन सा कुफर मुराद है? देखिए सहाबाए किराम का इजमा जिसमें तमाम सहाबाए किराम मुत्तफक हो जाएं किसी बात पे, तो उसका इनकार वाकई कुफर है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, फमन तवल्ला गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला, जो मोमिनीन के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता अपनाएगा तो हम उसको फेर देंगे उसी तरफ जिस तरफ वो जा रहा। सनुस्ली जहन्नम, और उसको जहन्नम में डालेंगे, वो सात मसीरा, और जहन्नम बहुत बड़ा ठिकाना। तो ये इजमा जिस तरह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत है, इनकी खिलाफतों का इनकार भी कुफर है कि इसमें तमाम सहाबाए कराम को झूठा करार देना लाजिम आता है, जिसमें तमाम अहले बैत कराम भी शामिल है। ये सब के सब मुत्तफिक थे इनकी खिलाफतों पर। तो और कुफर से मुराद वही कुफर है जो इंसान को मुर्तद बना देता है। फिर क्वेश्चन था इनका कि 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के बारे में फजीलत आई कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे मुसाफा फरमाएंगे, तो औरतों का क्या मामला होगा? मुराद ये क्या औरतों से भी मुसाफा होगा? तो देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में सुन्नत यही रही है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मा मस्सा यदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदा इमरातिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कभी किसी अजनबी औरत के हाथ से नहीं छुआ, सुभान अल्लाह, ना बैत कराने में ना किसी और काम में। तो जाहिर सी बात है शरीयत का हुक्म है। तो अब ख़वातीन के लिए उनकी मुनासबत से जो कुर्बत का दर्जा है या कुर्बत का जिस तरह से इजहार हो सकता है वो किया जाएगा। तो ये मुसाफा असल में एक करीब होने की दलील है कि इसको इतनी कुर्बत हासिल है कि हाथ मिला सकता है। तो ख़वातीन को उनकी मुनासबत से फिर जो भी कुर्बत का दर्जा होगा वो दिया जाएगा। वो सब कॉलर्स का बहुत रश, आप इजाज़त दें तो शामिल करते रहते हैं, फिर गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मैं खालिद महमूद बोल रहा हूं, सऊदी अरब से। सऊदीया से बात कर रहे हैं। जी जी जनाब, ये थोड़ा सा मसला था। अगर आदमी वजू का जो नमाज के लिए जाए, अगर पेशाब के कपड़े दोबारा जब से मतलब मर्द तकलीफ आ जाए, मर्द कुछ हो जाए, फिर उसका क्या वजू रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा ठीक है। दूसरा ये सवाल है, कोशिश बहुत करता हूँ कि ना ऐसा हो, लेकिन फिर भी समझे हो जाता है, फिर आदमी का है। दूसरा ये कि मैं हज पे गया था और रस्ते में हमें साइफ का मिकात आता है, वो मिकात में बहुत ज्यादा मुश्किल थी, मतलब एहराम से बगैर आगे चले गए थे।
वो उसके ऊपर क्या दम वाजिब है या नहीं वाजिब, ये दो मसले थे। अच्छा ठीक है, सऊदी तो अरबिया तीसरा ये कि अगर मुक़्तदा और गैर मुक़्तदा जो सुनते हैं वो उनका तरीक़ाकार पूछना था। अच्छा, मौक़दा गैर मौक़दा का आप तरीक़ा पूछ रहे हैं। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरबिया से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपके मसाइल का क्या हल है आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाअल्लाह आपको बताएंगे मुफ्ती बकर सिद्दीक़ शादली साहब। बहुत शुक्रिया भैया। जी मुफ्ती साहब। अच्छा जी, एक भाई ने क्वेश्चन किया कि पैंट शर्ट पहनता हूँ हर हाफ आस्तीन में क्या नमाज पढ़ सकता हूँ? तो देखें, हाफ आस्तीन में नमाज पढ़ना जायज़ है मर्द के लिए, उसमें कोई कराहत भी नहीं है। कराहत उस वक्त होती है जब आपकी आस्तीन है पूरी और आप उसको फोल्ड करें। फोल्ड करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो अगर इतनी फोल्ड की कि आधी आस्तीन से ज़्यादा फोल्ड हो गई, आधी कलाई से ज़्यादा, तो फिर उसको मकरूह तहरीमी का हुक्म है। उससे कम में पसंदीदा नहीं है, लेकिन बहरहाल हो सकती है। फिर उन्होंने पूछा कि लोग पैंट्स को फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि अल्लाह उकुफ़ शरम वला सौबा, मुझे हुक्म दिया गया ना बालों को फोल्ड करूं और ना ही कपड़ों को फोल्ड करूं मैं। तो इसलिए फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि कपड़ों को फोल्ड करेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो लंबी शलवार या लंबी पैंट पहनी हुई है तो उनके लिए हुक्म ये है कि उसको फोल्ड ना करे, वैसे ही पढ़ लें, वरना नमाज उनकी दोबारा पढ़नी पड़े, वाजिब अदा हो जाती है। फरमाया कि बावजू रहता हूँ लेकिन शाम में शैतान सुस्ती दिलाता है। तो देखें, इस ज़िंदगी को नबी अलैहिस्सलाम ने जहाद अकबर करार दिया है। जो दुश्मनों से जहाद होता है उसको जहाद असगर, और क्योंकि उसमें एक दफ़ा ही होता है, मर गया मार दिया, लेकिन इसमें रोज़ाना जंग करनी पड़ती है और लंबे जंग करनी पड़ती है, इसलिए इसको जहाद अकबर करार दिया गया। तो ये शैतान से लड़ना ही जहाद है, नफ्स से लड़ना ही जहाद है। नफ्स सुस्ती दिलाता है तो बहरहाल सुस्ती नहीं करनी चाहिए और इंसान को वज़ू करना चाहिए कोशिश करके। बहरीन से मिसेस तारिक ने क्वेश्चन किया था कि कितने दिन के बाद उम्रा कर सकता है इंसान? तो देखें कि इसमें कोई क़ैद नहीं है, एक उम्रा करने के फ़ौरन बाद दूसरा उम्रा भी इंसान कर सकता है, लेकिन बात यह कि उसका एहराम बांधना होगा। एहराम के हवाले से, नया एहराम के हवाले से उन्होंने कहा कि लोग मस्जिद आयशा से जाके एहराम बांध लेते हैं, तो सुना है कि जनाब वो शहर से बाहर जाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मस्जिद आयशा वो हरम की मीक़ात है, यानी वहाँ से हिल शुरू हो जाता है। तो जो मक्का मुअज़्ज़मा में आ गया वो मक्की हो गया, और मक्की के लिए एहराम की मीक़ात जो है वो हिल है। वो हिल में जो सबसे करीब तरीन पॉइंट है जो मस्जिद आयशा है, जिसका पुराना नाम मस्जिद तनईम था। ये दो पहाड़ हैं वहाँ पे, नाम और नईम के नाम से, उनको तनईम कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने वहीं से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि आप वहाँ से एहराम बांध के आ जाएँ, तो उन्होंने वहीं से जाके एहराम बांधा था। तो बाद में यादगार में उनके नाम पे मस्जिद बनाई गई, इसलिए उस मुकाम को मस्जिद आयशा कहते हैं। तो वहाँ से एहराम बांधा जा सकता है। क्या मर्द हाफ आस्तीन में नमाज पढ़ सकते हैं? उसका जवाब मैंने दिया कि अगर आस्तीन ही हाफ है तो पढ़ सकते हैं, फोल्ड नहीं करना चाहिए। फिर दुबई से भाई ने क्वेश्चन किया कि वज़ू बार बार टूट जाता, वसवसे आते हैं। देखो, वसवसों से नहीं टूटता वज़ू। नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस है, तुम में से कोई मस्जिद में बैठा हुआ है और उसको ख्याल आता है कि शायद वज़ू टूट गया, तो फरमाया कि उस वक्त तक मस्जिद से बाहर ना निकले जब तक कि उसकी आवाज़ ना सुन ले या उसकी बू जो है नाक में ना आ जाए, तब तक वज़ू टूटने का हुक्म नहीं है। तो वसवसों से नहीं टूटेगा। ठीक, तो सब कॉलर्स मौजूद हैं, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? असगर अली, दुबई से सर। अच्छा असगर भाई, हाँ अभी आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था जी। जी जी हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि हम दुबई में रहते हैं, तो यहाँ पे बिल्डिंग है, तो वहाँ पे कोई मखसूस जगह नहीं है वजू की। तो यहाँ पे बंदे जो ना खड़े होकर टैंकी के ऊपर खड़े होकर वो वजू करते हैं, क्या ये जायज है, सही है? टंकी के ऊपर खड़े होकर वजू करते हैं। ठीक है असगर भाई, अभी बताएंगे इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखते रहिए। मुफ्ती बकर सिद्दीक़ शादली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपके मसाइल का हाल बयान फरमा रहे हैं, आपको भी इंशाल्लाह बयान फरमाएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दुबई से आपने दोबारा शमूलियत अख्तियार की इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया जी। भाई ने कराची से क्वेश्चन किया था कि बीवी को मैंने ज़ेवर बनवा के दिए हैं, वो इस्तेमाल करती है, तो क्या उन पर ज़कात है? सुना है कि इस्तेमाली ज़ेवर पर ज़कात नहीं है। तो देखें, इस्तेमाली अशिया पे ज़कात नहीं होती, लेकिन ज़ेवर का हुक्म अलग है। सोना और चांदी वो दो देहात हैं जो समर खलकी हैं, वो चाहे इस्तेमाल में हो चाहे उठा के रखी हो, उन पर बहरहाल निसाब होने की सूरत में ज़कात वाजिब होती है। तो ये तस्वुर गलत है कि जनाब इस्तेमाल किए जाने वाले सोना चांदी पे ज़कात नहीं है। नीज़ उन्होंने कहा कि बीवी के पास तो माल है नहीं, मुझे ज़कात देनी है। तो बात यह कि ज़कात उसी पे वाजिब होती है जिसकी वो मिल्कियत में है। अगर आपने बीवी को तोहफा देकर उसकी मिल्कियत कर दिया तो बीवी पे ज़कात है। अब बीवी के पास पैसे नहीं है तो वो आपसे पैसे लेकर ज़कात दे सकती है, कोई मसला नहीं है। या उसी जेवर में से, आपके पास भी नहीं है, उस जेवर में से कुछ जेवर बेचे बाजार में, या डायरेक्ट किसी फकीर को दे दे जितना वजन बनता है, तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। कॉलर मुंतज़िर हैं, फिर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, आयशा। आयशा बहन हैदराबाद से, जी फरमाइए। मेरा ये सवाल है कि मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, 1.5 साल के, 2 साल के, 3 साल के, और जो तो वो आगे पीछे मेरे बहुत होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं बहुत नमाज में। मेरा पूरा ध्यान नमाज में होता है, तो इसी वजह से मेरी नमाज तो हो जाएगी ना? अच्छा, इंशाल्लाह आपके मसले का हल बयान फरमाएंगे। आप प्रोग्राम देखती रहिएगा। नाज़रीन आप कहीं नहीं जाएगा, हम मिलते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई करीब की बात है, जिसे हल खूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश किया जा रहा है और आपके मसाइल का हल बयान फरमा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शेखुल हदीस फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब। वक्फे से पहले हमारे साथ कॉलर्स मौजूद थे, उनके मसाइल भी मौजूद हैं। चलते हैं मुसाहब की तरफ कि उनके मसाइल का हल क्या है। देखिए, भाई ने क्वेश्चन किया था कि मरने से पहले बेटियों को ज़्यादा तकसीम कर सकता हूँ। देखिए, मरने से पहले जो कुछ देंगे वो तोहफा होगा, और बेटियों को दें चाहे बेटों को दें, और बेहतर ये कि सभी को दे दें। ये नहीं कि सिर्फ बेटियों को दे दिया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ बेटियों को दिया, बाद मरने की बेटियों को फिर विरासत में हिस्सा अलग मिलेगा। अच्छा, जिंदगी में जो दिया था वो विरासत नहीं थी, वो तोहफा था। आप चाहे विरासत के दे दें, वो तोहफा है वो। अच्छा वो सब, इसी में एक ज़िमनी सवाल जहन में आया है कि कहीं मैंने सुना था शरीयत में ये है कि रोज़ वसीयत यानी वसीयत करके सोया करो, तो उसको किस तरह लेके जाएंगे? वसीयत तोहफे में आ जाएगी क्या? नहीं, वसीयत जो है वो मरने के बाद नाफिज की जाती है। अच्छा, अगर मैं मर जाऊँ तो ऐसा हो? हाँ, और वो भी वारिसिन के हक में नहीं है, क्योंकि वारिसिन के हिस्से तो अल्लाह ने तकसीम कर दिए हैं कुरान में। तो जो तकसीम अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? सही, और इसलिए फरमाया कि ला वसीयत लिल वारिसी, वारिसों के लिए कोई वसीयत नहीं है। वसीयत होगी औरों के लिए जो आपके वारिस नहीं है। ठीक। और फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि दुबई में बिल्डिंग है, उसमें खड़े होकर हम वजू करते हैं, तो क्या ठीक है? देखिए, वजू हो जाएगा और कोई इसमें गुनाह की बात भी नहीं है, लेकिन पसंदीदा ये है कि अगर पॉसिबल है तो बैठ के किया जाए, वरना खड़े होकर भी वजू हो सकता है, कोई मसला नहीं है। फिर किसी भाई ने कहा कि मर्द लायक है कतरों का, तो देखें कतरों का मर्द लायक है तो फिर उसकी कैफियत देखनी पड़ेगी कि कैसी कैफियत है। अगर उनका ऐसा मर्ज है कि नमाज का जो सबसे छोटा वक्त है, मसलन ये लीजिए फजर का टाइम ले लीजिए कि शुरू होता है और 1.25 घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, तो अगर उस पूरा वक्त में वज़ू की कोशिश करते रहे लेकिन फिर कतरे आते हैं, फिर वज़ू करते हैं, फिर कतरे आते हैं, अब मसला ये हो गया कि जनाब नमाज कज़ा हो जाएगी अगर वज़ू करते रहे, तो फिर उसी तरह नमाज पढ़ ले। अब उसका उज़र साबित हो गया है। सही। अब उज़र साबित हो गया है तो आइंदा इस उज़र की वजह से इसका वज़ू नहीं टूटेगा। अब अगली नमाज के लिए वज़ू कर ले, उससे फिर जितनी नमाजें पढ़ सकता है अगले वक्त तक वो पढ़ सकता है, लेकिन उधर साबित होने की बात है। सर कॉलर्स को शामिल कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी भाई मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ, खानेवाल से। जी जी फरमाइए। मुबशर हसन मेरा नाम। भाई बाकी नमाजें मैं बाद जमात से पढ़ता हूँ और सुबह की नमाज मेरी जो है ना कज़ा हो जाती है, इसका कोई वजीफा बता दे। अच्छा ठीक है, खानेवाल से आप शरीक को इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह उस से बात करेंगे। बहुत अदब के साथ अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपका मुझसे राब्ता हो तो प्लीज़ अपना टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, क्योंकि आपकी ईको की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होती है और हम समझ भी नहीं पाते और फिर गुफ्तगू ऑन एयर ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा प्लीज़। जी मुफ्ती साहब, भाई ने कहा कि एहराम के बगैर ही हम मिकात के अंदर चले गए थे, तो क्या दम वाजिब है? अगर मिकात को क्रॉस कर लिया था बगैर एहराम के और फिर लौट के दोबारा नहीं आए कि वापस आके एहराम बांध लेते तो फिर दम वाजिब हो गया। अगर वापस आके दोबारा बांध लिया तो फिर नहीं हुआ। ठीक। फिर उन्होंने पूछा कि मौक़दा और गैर मौक़दा सुनन के अदा करने का तरीका क्या है? दोनों का तरीका तकरीबन एक जैसा है, मगर सुन्नत गैर मौक़दा जो इशा के 4 फ़र्ज़ है, 4 सुन्नतें इशा से पहले और असर से पहले 4 सुन्नतें हैं, उनमें यह है कि दूसरी रकात में अतहियात शरीफ के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ना होता है। उसके बाद जब तीसरी रकात के लिए खड़ा होता है तो फिर उसमें सुबहानकल्लाह से शुरू करते हैं, सना पढ़ेंगे। हाँ, सिर्फ ये 2 फ़र्क हैं, बाकी और नॉर्मल तरीका कोई। अच्छा। फिर आयशा बहन ने हैदराबाद से पूछा कि नमाज़ पढ़ती हूँ, 3-4 बच्चे हैं, वो आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं, क्या नमाज में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप अपनी तवज्जो नमाज की तरफ रखा करें,
इंशाअल्लाह तबारक व तआला। खाने वाल से भाई ने पूछा कि सुबह की नमाज रह जाती है, कोई वजीफ़ा बता दें। देखिए वजीफ़ा तो इस बात का हो सकता है कि आपकी आँख खुल जाए, और उसका वजीफ़ा एक ये बहुत आसान वजीफ़ा है कि रात को सोते वक्त सीने पे हाथ रख कर 4 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़कर इस नियत से सो जाएं कि सुबह मेरी आँख खुल जाए। तो जो आप जहन में अलार्म लगाएंगे अपने, जो टाइम सेट करेंगे उसी टाइम में आँख खुलेगी। सुभान अल्लाह। या इसी तरह वो एक आयत तैयबा लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफदा कलिमाति रब्बी, ये आयत तैयबा जो है, इस आयत तैयबा को रात को सोते वक्त पढ़ लिया जाए तो इंशाल्लाह जिस टाइम का इरादा करेगा उस टाइम में आँख खुल जाएगी। आँख खुलने के बाद फिर सुस्ती कर जाए, नफ्स की सुस्ती है, और नफ्स की सुस्ती हो तो फिर बुजुर्गों का तरीका तो ये है कि इसको सज़ा देते हैं कि भाई आज तुमने फजर की नमाज़ छोड़ दी तो आज तुम्हें नाश्ता नहीं कराऊंगा मैं, तो और दोपहर तक खाना ना खाया जाए सज़ा के तौर पे। कोई बोले जो नाश्ता तो मैं वैसे ही नहीं करता, तो फिर दोपहर का खाना उसका बंद कर दिया जाए। इसको तकलीफ होगी तो फिर अगले टाइम में ये सुस्ती छोड़ेगा। सही। अच्छा मुझसे मौजू के हवाले से मैं ये कंप्लीट होगा बहन भाई को क्वेश्चन। मौजू के हवाले से एक सवाल ध्यान में आया कि अभी जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि 3-4 बच्चे हैं, नमाज में डिस्टर्ब करते हैं। कोई मेरी बहन नमाज ज़ाहिर ख़वातीन अकेले पढ़ती हैं, नमाज अलहदा पढ़ती हैं, किसी बच्चे ने, मासूम बच्चे ने आके उन पर पेशाब कर दिया या कोई गंद कर दी, तो क्या उस पर वज़ू टूट जाएगा उनका मोहतरमा का, नमाज छोड़? देखिए दौरान नमाज अगर कई कपड़े पे नापाकी बच्चे ने कर दी है तो उससे वजू तो नहीं टूटेगा, लेकिन नमाज टूट जाएगी। नमाज टूट जाएगी क्योंकि नमाज जो अदा की जाती है वो नजासत के बगैर अदा की जाती है। तो ये है कि नमाज टूट के जाके उस कपड़े के हिस्से को धो लें, अगर धो सकते हैं तो। जिस्म पे अगर नहीं लगा कि जिस्म पे भी लग गया तो उस हिस्से को धो लें और ये कपड़े चेंज कर लें और फिर दोबारा नमाज शुरू कर दें, उससे वजू नहीं टूटेगा। वजू नहीं टूटेगा, वजू के टूटने के अलग असबाब। अच्छा नमाज मुकम्मल करती रहे, अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया ऊपर चल के तो नमाज टूटे फ़ौरन छोड़ देना नमाज? हाँ फ़ौरन छोड़ दें, फिर पाक करके जिस्म को या कपड़ों को पाक करके नमाज। अच्छा जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, आपने फरमाया कि अगर बेवुज़ू हो जाए तो जैसे नक्सीर फुरा इस तरह का एक्शन दिखा के, मतलब इस तरह का ज़ाहिर दिखा के और निकलने की कोशिश करें, और नमाजियों को भी चाहिए कि सफ़ में जगह दे दें। हाँ। ठीक है ना। अच्छा अब अगर उसको जगह ना मिले, आज के जैसे आपने देखा होगा नमाजी हमारे बड़े माशाल्लाह मुस्तकिल मिजाज, और वो समझते गुनाह मिल जाएगा उन्हें जगह दे दी, तो बेचारा वो क्या करेगा, तो फंस गया आगे जाके। देखिए उसका हुक्म है सफ़ा को चीरता हुआ चला जाए। हाँ हाँ। तो अगर नहीं देता तो वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। यही मैं पूछा, सफ़ों को चीरने का लफ्ज़ है, यही मैं कह रहा था कि सफ़ों को चीरता हुआ चला जाए। तो वैसे तो बहरहाल जो नमाज पढ़ रहे हैं उनका अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि कोई बंदा निकलना चाह रहा है तो उसको निकलने के लिए जगह दे उनको। अच्छा इसी बात को मैं आगे ले जाऊँगा, लेकिन अगर मसला झगड़े का मसला है तो ठीक है, फिर खड़ा हो जाए, इंतजार कर ले, इंतजार कर ले। हाँ, लेकिन नमाज में शामिल ना हो। अच्छा लेकिन ये कराहियत के साथ खड़ा रहे, ठीक है ना। अच्छा अगर इमाम का वज़ू टूट जाए, बेवज़ू हो जाए, फिर क्या होगा? देखिए इमाम के लिए भी यही हुक्म है कि अगर उसका वज़ू टूट गया और ऐसी वजह से टूटा है कि उस पर बिना की जा सकती है, यानी दोबारा वो अपनी नमाज को कायम कर सकता है, तो वो अपना खलीफा बना सकता है किसी को। तो किसी को भी सफ़ में से अपना खलीफा बना दे, उसको आगे कर दे कि तुम मेरी जगह नमाज पढ़ाओ, और ख़ुद अब दोबारा वज़ू करने के लिए चला जाए, उसके लिए भी ये हुक्म है। तो वो इमाम ने अगर 3 रकात पढ़ाई तो चौथी वो बिना के हवाले से चौथी रकात खलीफा उनका मुकम्मल कर देगा। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा अच्छा अब सुना गया कि अगर नमाज के दौरान आँख लग जाएगा, आपको पता है नमाज में तो आजकल सारे हिसाब किताब नमाज के दौरान ही होते हैं ना, नींद भी नमाज के दौरान ही आती है। जी जी। तो अगर आँख लग जाए तो वज़ू टूट जाएगा? देखिए उसमें सिचुएशन है, अगर वो ऐसी सिचुएशन में जिसमें इंसानी आज़ा ढीले पड़ जाते हैं तो फिर तो उसका वज़ू टूट जाएगा। अच्छा। ख़वातीन का टूट जाएगा। मर्दों का आमतौर पे ऐसा होता है, वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं या तो खड़े होंगे या रुकू में होंगे या सजदे में होंगे या तशहुद में भी होंगे, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, सोने से उनका, सोने से टूटेगा। औरतों का सजदे में टूट जाएगा। टूट जाएगा। शामिल करते हैं कॉलर्स का। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी, ज़रा वॉल्यूम टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करिए, टेलीविजन का वॉल्यूम। जी अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। बहुत मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों, जब प्लीज़ आप शामिल हुआ करें तो टेलीविजन का वॉल्यूम फ़ौरन बंद किया करें ताकि हम आपको सही तौर पर सुन सकें। बहरहाल एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मरी से बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो तावीज़ात वगैरह घर में रखे होते हैं तो जब वो मिलेंगे पहले के, तो क्या उन्हें जला देना बेहतर है या पानी वगैरह में बहा दिया जाए? ज़रा सा सवाल रिपीट करें प्लीज़।
जो तावीज़ात पहले के मिले होते हैं, रखे होते हैं घर में, अगर वो पुराने तावीज़ात मिले अच्छा तो उन्हें आग में जला देना बेहतर है या पानी में बहा दिया जाए, ये बेहतर है? ठीक है मेरी बहन, मरीज से आप शामिल एक और सवाल हैं करना है आपसे। जी जी एक और सवाल है। जी फरमाइए। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। जी मुफ्ती साहब, देखें, पुराने तावीज़ात जो मिले उनको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको बहा देना चाहिए पानी में। तो उनमें कुरान की आयत भी होती हैं, बाज़ औक़ात हदीस भी होती हैं, तो उनको बहाना बेहतर है। बहाना बेहतर है। अच्छा उस हम अपने बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। नमाज के दौरान अमूमन देखा गया बंदे बाज़ औक़ात लड़खड़ा जाते हैं या गिर भी जाते हैं, तो उससे वज़ू टूट जाता है, बेवज़ू हो जाते हैं। देखें, अगर वो गिरना बेहोशी की वजह से है, मदहोशी की वजह से है, तो फिर तो वज़ू टूट जाएगा कि होश कायम ना रहे, इस तरह मफासिल पाया गया तो वज़ू टूट गया, और वैसे लड़खड़ा गया तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। अच्छा ठीक है, मुसा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत कम वक्त में आपने बहुत सारा हमें इल्म अता फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और मेरे तमाम सुनने वाले नाज़रीन को साहिब अमल भी बनाए कि आज शब जुमा है और शब जुमा की शरीयत मुतहरा में बड़ी अहमियत है। आज की रात यकीनन मेरे बहुत सारे बहन भाई जो बुज़ुर्गी के दर्जे पर फायज़ होगा, उम्र के हवाले से नहीं, तक़वा के हवाले से, उन सब से दरख्वास्त है कि हम सबको दुआओं में याद रखें। और वज़ू के हवाले से मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान याद आया कि फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान अच्छी तरह वज़ू करे और फिर खड़ा हो और बातिन और ज़ाहिर को यकजा करके 2 रकात नमाज अल्लाह पाक के लिए अदा करे तो जन्नत उसके लिए वाजिब कर दी जाती है। तो नाज़रीन, वज़ू की बहुत अहमियत है, बहुत अच्छी तरह शरई हवालों से वज़ू करें। हमारे प्रोग्राम में आपको वज़ू के हवाले से बताते रहे हैं। अगर फिर भी किसी को मसला है तो किसी भी प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। अल्लाह ताला जनाब अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब को उम्र तवील अता फरमाए कि इसी तरह दीन की खिदमत करते रहें और हम जैसे इनके शागिर्द जो हैं इनके तोफ़ैल इल्म के साए में हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमसे तबलीग का काम लेता रहे, हम कहाँ तक कामयाब रहे आपका फ़ीडबैक हमें बताएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी बखैर तो इंशाअल्लाह ये आपका खाकसार मेज़बान आशकार दावर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब के साथ इस प्रोग्राम को सजा कर सवार कर अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर हाजिर होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हम सबको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।